and welcome all students. We'll continue with the chapter of history, that is heritage management. In the previous video, we had seen about some of the museums in India and we had seen about the ancient encyclopedias. So today in detail we are going to see about encyclopedias. So students, come to page number 63, 9.4 encyclopedias. Encyclopedia is a systematic compilation of information or knowledge of various topics. The information or knowledge in encyclopedia is arranged with a specified method. Organizing available knowledge and making it accessible is the main objective of encyclopedias. Benefits of encyclopedia. Encyclopedias make vast volume of knowledge accessible to readers. It can help in satisfying their curiosity. Encyclopedias provide fundamental information on any topic in order to understand it properly. Thus, the reader gets motivated to read extensively. Encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers, and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. Encyclopedias are indicators of the state of cultural ripeness of a society. The intellectual and cultural needs of a society determine what kind of encyclopedic literature would be created. Intellectual means relating to your ability to think and understand things, especially complicated ideas. Accuracy, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation, and updated information are the criteria for designing a structure of an encyclopedia. Meticulousness means precise or thorough. In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original editions need to be published. Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. The type of order is decided by keeping the convenience of readers in mind and the ease of accessibility to the information. An index at the end of the encyclopedia is very convenient in this regard. The encyclopedia can be created either by a single editor or an editorial committee. The articles in the encyclopedia are written by subject experts. What is an encyclopedia? Encyclopedia is a systematic complication of information or knowledge of various topics. यहाँ पे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. The information or the knowledge in encyclopedia are arranged in a specific manner. सही तरीके से उसे अरेंज किया जाता है. यहाँ पे उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे अच्छी तरीके से उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सेस किया जाता है. मतलब किस तरीके से उसको बताना चाहिए, उसको सही तरीके से उसे अरेंजमेंट किया जाता है. Now we are going to see the benefits of encyclopedia. Encyclopedia जो है वो बहुत सारी नॉलेज होती है. It is having a large of knowledge. कि बहुत सारा नॉलेज होता है उसके अंदर. और you cannot write encyclopedia sometimes in one book. एक बुक में वो कंप्लीट नहीं होता है. तो इसके लिए उसको वॉल्यूम्स होते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम. और इससे जो रीडर होता है उसकी जो क्यूरियासिटी होती है वो जानने की कि क्या है, व्हाट इज़ इट, और डेप्थ में वो पढ़ना चाहता है. सो दे वांट टू रीड थ्रू इट. सो दे गेट देयर क्यूरियासिटीज़ टू बी सेटिस्फाई. उनकी जो क्यूरियासिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है. उनको फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में उनको वो समझ में आता है. और धीरे धीरे वो ये ऑर्डर में जो जिस तरीके से एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया होता है वो धीरे धीरे वो रीडर को समझ में आता है.
यहाँ पे रीडर मोटिवेट होता है कि और ज़्यादा पढ़े, और ज़्यादा उसके बारे में रीड करे, और ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। एनसाइक्लोपीडिया जो होती है वो नॉलेज को इजीली एक्सेसिबल कर देता है स्कॉलर्स या रिसर्च को। मतलब इस तरीके से लिखा गया होता है, या तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया होता है या तो इन द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, ताकि जो रीडर है वो ईज़िली वो ढूंढ सके और इजीली वो पढ़ सके जो वो टॉपिक के बारे में जिसको उसको रिसर्च करनी है। और वो रिसर्च जो होती है, जो रिसर्च एरिया होता है, उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया होता है एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, ताकि ये जो कल्चरल राइपनेस ऑफ अ सोसाइटी जो होती है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल जो कल्चरल नीड्स होती है एक सोसाइटी की, ये भी लिखा जाता है इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज़। अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज़ लिखी जाती हैं और ये अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज़ के अंदर यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट एनिमल्स, अबाउट इंडियन सिनेमा, अबाउट द वर्ल्ड आर्ट, अबाउट द एंशिएंट कॉइन्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन वॉर ऑफ पेंटिंग। ऐसे बहुत सारी एनसाइक्लोपीडिया अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड होती हैं और उनके बारे में उनका नॉलेज, मतलब उनको इतनी क्यूरियोसिटी, जो नॉलेज वो सर्च कर रहे हैं, जो वो एक्चुअली जो क्यूरियोसिटी होती है, वो जानने की जो उत्सुकता होती है उन लोगों की जानने की, वो ये एनसाइक्लोपीडिया के अंदर उनको मिलता जाता है। और रीडर को और मज़ा आती है कि और वो पढ़ते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करते जाए। वैसे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल्स एनसाइक्लोपीडियाज़ लिटरेचर के भी अलग अलग लिटरेचर्स के ऊपर भी होती है। एक्यूरेसी, मेटिकुलसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब तरीके से एनसाइक्लोपीडिया को डिज़ाइन किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है एनसाइक्लोपीडिया का, ताकि जो रीडर है उनको एग्जैक्टली समझ में आए उनको, और सिस्टमेटिक होता है उनका प्रेजेंटेशन, जो फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन होता है वो भी बहुत स्टैंडर्डाइज होता है। और अपडेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो एनसाइक्लोपीडियाज़ में लिखी जाती है। और एक्यूरेसी एंड मेटिकुलसनेस, मतलब थॉरल स्टडी करने के बाद ही एनसाइक्लोपीडियाज़ लिखी जाती हैं। सो इससे क्या होता है, जो रीडर होता है उनको बहुत सारी मज़ा आती है पढ़ने के लिए, और इसके साथ साथ उनका रिवाइज एडिशन भी होते हैं। अलग अलग एनसाइक्लोपीडियाज़ के रिवाइज एडिशन, मतलब उनको फिर से रिवाइज करके फिर से नया एडिशन, मतलब जो ओरिजिनल एडिशन होता है वो तो होता ही है, और उसके साथ उसका एक रिवाइज एडिशन भी होता है। You can see in the picture the benefits of encyclopedia in different things, like about the forts, about the world heritage, about animals, about the flora, fauna, about the ancient encyclopedias, about the natural encyclopedias, about science. So बहुत सारी encyclopedias अलग अलग होती है अलग अलग टॉपिक के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसाइक्लोपीडियाज़ जो होता है वो या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है या तो ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, कौन से टॉपिक के बारे में है। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री का टॉपिक ले लें तो पहले होता है एंशिएंट, देन मेडिवियल, देन मॉडर्न, तो इसी तरीके से वो क्रोनोलॉजी में वो एनसाइक्लोपीडिया चलता रहता है और वैसे लिखा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया जो है उसके लास्ट में होता है इंडेक्स। ये इंडेक्स जो होता है वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है इन टू दिस रिगार्ड, ताकि हमें जो इसमें लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो भी है, कीवर्ड्स जो होते हैं, रेफरेंस बुक है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। एनसाइक्लोपीडिया है वो या तो एक सिंगल एडिटर, एक पर्सन लिख सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया, या फिर एडिटोरियल कमेटी होती है जो मिलके एक एनसाइक्लोपीडिया लिखते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल्स जो होते हैं एनसाइक्लोपीडिया का, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही एनसाइक्लोपीडिया को लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान एनसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं, नहीं। एनसाइक्लोपीडिया अगर आपको लिखनी है तो यू शुड हैव एक्यूरेसी, जो भी आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको एक थरो स्टडी होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एनसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो एनसाइक्लोपीडियाज लिखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ encyclopedias. We have seen about the earlier encyclopedias, and let us in detail see about the different types of encyclopedias. So they are number 1 dictionaries, number 2 comprehensive encyclopedia, जिसे हम विश्वकोश भी कहते हैं, encyclopedic literature जिसे हम कोश सदृश भी कहते हैं, और indexes होते हैं. So this is how the encyclopedias are being classified. More about the encyclopedias that we'll see in the details, the types of encyclopedia, जैसे डिक्शनरी है, विश्वकोश है,
कोशदृश है, इंडेक्सेस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर. I hope you have understood very well about the encyclopedias. So stay at home, stay safe. Thank you, students.